Hello dear students, how are you all? I hope you all must be going very well. Today students, we are going to explore the very first chapter of science class 6, that is about diverse world of plants and animals. So students, in this session today, we are going to know and learn about the different kinds of plants, okay, the different kinds of animals, their diverse variety, okay, and the adaptations which they have acquired for their survival in their particular habitat. Okay, let's start the chapter. See, the students, first of all, we have the topic of what? Diversity in plants. See, okay. So students, if we take an example of a garden, okay, अगर आप एक garden में जाते हैं, park हो जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या different variety of plants देखने को मिलते हैं, right? There are various kind of trees, shrubs, herbs, climbers, creepers, and many other plants. And उसके साथ साथ you can see a diverse variety of animals also roaming around here and there. Okay, so अब इन सभी animals में क्या similarity, क्या differences है which we can commonly observe that we are going to learn in this topic first of all, that is diversity in plants. Okay, see, so there are different types of plants. As we all know, different types of plants are there. कुछ आपके land पे grow करते हैं and some grow in water also, right? And they have a variety of features. Okay, now they could be tall or short, hard or soft stems, have different shapes and sizes of leaves and flowers and so on. What they're saying that they have discussed you the differences or the similarities. That means कुछ plants आपके tall होते हैं, कुछ short होते हैं, कुछ trees की stems आपकी soft है, hard है, different shape and sizes के leaves and flowers are there on the different types of plants. Okay, so therefore what we can say that is कि सभी plants के अंदर क्या variety of shape, size, color and texture होता है उनकी leaves में भी. एंड अगर हम सभी लीव्स के अरेंजमेंट की बात करें तो उनके अरेंजमेंट भी जो स्टेम एंड ब्रांचेस पे है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, इफ यू टॉक अबाउट लीव्स, तो लीव्स कंटेन क्लोरोफिल. लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज क्लोरोफिल एंड उसी की वजह से लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है. ओके, एंड सम प्लांट्स आर देयर, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर कुछ कलर्ड पिगमेंट होते हैं एज वेल एज द क्लोरोफिल एंड देयरफॉर दे अपीयर colored also. All right. Now, flowers, अब बात करते हैं flowers की. So flowers also vary. Okay, सभी plants के जो flowers है they also vary from each other. They vary in color, shape, size, fragrance. Okay, and ये जो differences है flowers के बीच में ये काफी common होते हैं and they are more evident observation. All right. Now flowers are the reproductive organs of the plant. Flowers क्या है? Flowers plant के reproductive organs होते हैं and most of the flowers, ज़्यादातर flowers जो है वो fruits में turn हो जाते हैं जिनके अंदर seeds present होती है. When the fruits mature, जब fruits mature होते हैं ये seeds disperse हो जाती हैं and on coming in contact with the soil, and जब ये seeds soil moisture के contact में आती हैं ये soil के अंदर ये seeds germinate हो जाती हैं and then they develop into a small plant. That means what? इसीलिए seed का जो dispersal है from the parent plant is necessary. Okay. Now the dispersed seed, अभी जो dispersed seeds है favorable conditions मिलने के बाद and एक favorable season मिलने के बाद they start germinating. Sometimes कभी-कभी ये जो seeds होती हैं ये almost a period of 6 months तक क्या रहती हैं? dormant रहती हैं और more before germinating also. कभी-कभी कुछ seeds जब तक इन्हें proper conditions नहीं मिलती हैं तो ये क्या रहती हैं? dormant रहती हैं. Okay, for about a 6 month or till the time period they do not germinate. Okay. Next is diversity in animals around the world. अब around the world animals हैं उनमें क्या क्या diversity है? तो students, earth पे animals are present in a diverse variety. And animals could be land, water and even in the air also we can observe the animals. They may be extremely small. कुछ animals हैं जो बहुत ज़्यादा extreme small होते हैं जैसे as speckled cape tortoise. Okay, and और a bee hummingbird है, speckled cape tortoise है, ये बहुत ही छोटी species of animals में include करे जाते हैं. And animals could be huge also as like blue whale or an elephant.
ओके, सो इस तरीके से एनिमल्स वेरी इन देयर साइज, शेप, हैबिटेट, न्यूट्रिशन एंड अ लॉट मोर. ऑलराइट. एनिमल्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. एनिमल्स जो है, एज आई टोल्ड यू, ये सभी डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स लैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, आइसलैंड and even in the water also animals survive. Now the next topic which we have, that is biodiversity. What is it? The variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of that region. Plants and animals in a region are interdependent on each other. What they say? कि किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव करते हैं वो उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं. ओके. एंड किसी भी एक रीजन के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वो सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज जो है क्या करते हैं, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं कुछ बर्ड्स को, ओके, एंड अदर एनिमल्स को भी. एंड इन रिटर्न बर्ड्स एंड एनिमल्स जो है हेल्प करती हैं ट्रीज की सीड्स को स्प्रेड करने में आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स एंड सो ऑन. ओके. नाउ देन एनिमल्स आर ऑल्सो ग्रुप. अब एनिमल्स को स्टूडेंट्स हम उनके मूवमेंट के बेसिस पे भी ग्रुपिज्म में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं वी कॉल देम व्हाट, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. सम एनिमल्स लिव ऑन वाटर आल्सो. जो पानी के अंदर रहते हैं उन एनिमल्स को एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है. सो इस तरीके से एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैनर ऑफ मूवमेंट आल्सो. ओके. The variety of plants and animals can be grouped based on similarities and differences among them. All right. Now, how to group plants? सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे plants को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. तो as discussed earlier, जैसे पहले हमने डिस्कस किया है कि plants and animals को हम उनके similarities and differences के बेसिस पे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. Okay, which is shown by them in the shape, size, habitat and behavior. All right. तो सबसे पहले साइज, बेस्ड ऑन द साइज एंड काइंड ऑफ स्टेम. ठीक, किसी भी प्लांट का क्या साइज है एंड उनमें किस टाइप की स्टेम है, इस बिहाफ पर प्लांट्स को हम डिवाइड करेंगे इनटू हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. ओके. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हर्ब्स. वो प्लांट्स जिनकी जो स्टेम है स्मॉल, सॉफ्ट एंड ग्रीन होती है, वे आर नोन एज हर्ब्स. एंड बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिन्हें हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं. ओके, लाइक फॉर द कुकिंग पर्पस एंड दे आर आल्सो वेरी न्यूट्रिशियस. ऑलराइट. हर्ब्स जो है शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि इनकी लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता है. एंड मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर हर्ब्स जो है ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स तक सर्वाइव कर सकते हैं. दे प्रोवाइड, हर्ब्स जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं व्हेन दे आर कंज्यूम्ड. ऑलराइट. नाउ next we are going to talk about the shrubs, the plants that are neither very small nor too big. Okay, ऐसे plants जो ना तो बहुत ज्यादा short है, small है, and ना ही बहुत ज्यादा बड़े हैं, ऐसे plants को we call shrubs. And shrubs जो है they are bushy plants. Shrubs bushy plants होते हैं जिनमें काफी सारी branches होती हैं. They do not grow very tall. Shrubs जो है बहुत ज्यादा tall grow नहीं करते, but इनकी जो stem है वो woody होती है. Okay. Many shrubs, बहुत सारे ऐसे shrubs हैं जिनमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं एंड जनरली हम उन्हें एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज करते हैं. Shrubs have a लाइफ स्पैन. Shrubs का जो लाइफ स्पैन होता है वो few years का होता है. ओके. Then next we are going to talk about the trees. Trees जो है ये tall plants है जिनकी thick woody stem होती है. ओके. एंड की stem में outer covering is present which is known as bark, and tree की stems को we call trunk. ओके. बार्क जो है, बार्क एक स्केली आउटर कवरिंग है ऑन द टॉल हार्ड वुडी स्टेम. एंड ट्रीज जो है वो सेवरल ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं. नाउ मोस्ट हर्ब्स एंड ट्रीज. स्टूडेंट्स, बहुत सारे काफी सारे ऐसे हर्ब्स, सॉरी, श्रब्स एंड ट्रीज हैं जो अपनी लीव्स को शेड करते हैं वंस इन अ ईयर. ओके. सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपनी लीव्स को ऑटम सीजन में शेड करते हैं एंड देन उन प्लांट्स में न्यू लीव्स राइज करती है इन द स्प्रिंग सीजन. ओके. फिर काफी सारे ऐसे ट्रीज हैं जो अपनी लीव्स को डिफरेंट टाइम शेड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड लोकेशन. जनरली जो डेसिडियस ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स को ऑटम सीजन में शेड करते हैं एंड इस सीजन को हम फॉल भी कहते हैं इन सम कंट्रीज. ओके.
सम ट्रीज, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो कभी भी अपनी लीव्स को एट वन टाइम और इन वन सीजन कभी भी दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, एंड सच टाइप ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। ओके, यानी कि हमेशा ग्रीन रहते हैं, इनकी लीव्स कभी फॉल नहीं होती, कभी शेड नहीं होती, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज एवरग्रीन ट्रीज। नाउ सम स्मॉल प्लांट्स, अब कुछ स्मॉल प्लांट्स भी हैं जिनकी स्टेम्स वीक होती है एंड दे नीड सपोर्ट, इन्हें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है टू क्लाइम एंड टू ग्रो, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल मनी प्लांट, कुकुम्बर एक्सेट्रा, राइट। एंड कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्रीप करते हैं अलोंग द ग्राउंड, यानी कि सपोर्ट के थ्रू भी ग्रो नहीं कर सकते, ये ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाते हैं, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। ओके, एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन एक्सेट्रा। Now next we come to some other methods of classification of plants. अब students कुछ और भी methods हैं जिस basis पे हम plants को classify करेंगे। तो plants को broadly two groups में divide किया जाता है। Number one non-flowering plant, other is flowering plant. So first of all we have non-flowering plant. So as the name suggests, वो plants जिनमें flowers bear नहीं करते, they are known as non-flowering plants. For example, moss, algae, mushroom, they do not bear flowers. Flowers bear नहीं करते हैं and therefore they are known as non-flowering plants. Another we have what flowering plants means what? That the plants which bear flowers, ऐसे plants जिनमें flowers bear करते हैं, and most of the plants, ज़्यादा जितने भी plants हमारे surrounding में हैं, they bear flowers, okay, and therefore they are called flowering plants. Okay, different plants के पास different color के and different size के flowers होते हैं. Okay, इन प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स सभी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोटस, रोज, एप्पल एक्सेट्रा। नाउ लेट अस सी, ऑब्जर्व द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव। अब स्टूडेंट्स हम इन सभी डिफरेंट प्लांट्स में क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स को भी ऑब्जर्व करेंगे। स्टूडेंट्स लीव्स जो है वो किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। ओके, व्हाई? बिकॉज एज वी नो कि प्लांट्स अकेले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एंड ये पूरा जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट का, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इट इज जनरली थॉट दैट प्लांट्स ऑब्टेन द एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सन। फैक्ट इज एनर्जी फ्रॉम द सन अलाउज द प्लांट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस शुगर। रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन दीज प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द प्लांट। और द सेम कि जनरली कहा जाता है कि प्लांट्स को जो अपनी एनर्जी है वो डायरेक्टली सन से मिलती है, बट एक्चुअल फैक्ट क्या है कि जो सन की एनर्जी है वो प्लांट को हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने में, और उसके बाद प्लांट्स जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, शुगर, विच इज अ टाइप ऑफ फूड फॉर द प्लांट। एंड उसके बाद जब रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट्स में कैरी आउट होता है तो वो इस शुगर को, इस प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करता है, एंड दस द एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द प्लांट्स, राइट। Now, so that means what? इसीलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। बट हम लीव्स पे स्टूडेंट्स कुछ लाइनिंग, थिन लाइनिंग पैटर्न को या अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करते हैं विच वी कॉल्ड वेन्स। ओके, एंड द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। एंड किसी भी एक लीफ पे वेन का किस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, दैट इज नोन एज वेनेशन। तो कॉमनली हम टू टाइप्स के वेनेशंस को लीव्स के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन, अदर इज पैरेलल वेनेशन। ओके, तो इन सम लीव्स, कुछ लीव्स में आपने देखा होगा एक नेट लाइक पैटर्न बना होता है वेन्स का ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ थिक मिडल वेन, यानी कि लीफ में एक मिडल में एक थिक वेन जाती है और उसके दोनों ही साइड पे एक नेट जैसा पैटर्न है साइड वेन्स का। इस टाइप ऑफ पैटर्न को रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो पीपल ट्री की लीव्स होती हैं, दे एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन ओनली। देन ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी लीव्स हैं जिनमें वेन्स पैरेलली रन करती हैं, एंड इस पैटर्न को पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट एंड ग्रासेस। बनाना प्लांट की लीव्स, ग्रास की जो लीव्स होती हैं, उनकी लीव्स पे पैरेलल वेनेशन इज प्रेजेंट, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट रूट्स। सो एज वी ऑल नो, plants stay upright and fixed to the ground with the help of their roots. प्लांट्स जो है स्ट्रेट खड़े रहते हैं या एक पर्टिकुलर प्लेस पे ग्राउंड के साथ फिक्स रहते हैं अपनी रूट्स की हेल्प से। ठीक है, तो रूट्स जो है प्लांट को केवल उनके अपने प्लेस पे नहीं रखता, बट प्लांट्स को क्या वाटर एंड मिनरल्स या जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है उसे सॉइल में से एब्जॉर्ब करके भी प्लांट को प्रोवाइड करने का फंक्शन इज ऑफ
roots only. Okay. Now these nutrients, ये जितने भी nutrients हैं जो roots absorb करती हैं and plant को provide करती हैं, ये nutrients एक plant की healthy growth के लिए essential होते हैं. Alright? Now, generally students, जो plants जिनकी leaves पे reticulate venation होता है, they have tap roots. Means what? Tap root is a type of root जिसमें स्टेम के बेस पे एक मेन रूट होती है. ओके, एंड उस मेन रूट के साइड से बहुत सारी छोटे छोटे रूट्स अराइज होती है. तो जो पैरेलल रेटिकुलेट वेनेशन वाले प्लांट्स हैं उनमें टैप रूट्स होती है, एंड वो प्लांट्स जिनकी लीव्स पे पैरेलल वेनेशन है दे हैव फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट इज अ टाइप ऑफ रूट एंड देयर इज नो मेन रूट. ओके, यानी कि ये एक तरीके की बुशी रूट्स होती है. इसमें बहुत सारा एक बंच होता है छोटी छोटी रूट्स का, थिन रूट्स का, एंड वो बेस से ही ऑल थ्रू आउट द ग्राउंड स्प्रेड करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल चिकपी. चिकपी क्या है? चना. ये एग्जाम्पल है उस प्लांट का जिसमें टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीव्स में. ऑलराइट, एंड बात करें वीट की, तो वीट एक एग्जाम्पल है उस प्लांट का जिसकी रूट्स फाइब्रस है एंड लीव्स में पैरेलल वेनेशन देखा जाता है. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज सीड. ओके, तो स्टूडेंट्स इफ वी टॉक अबाउट सीड्स, तो सीड्स का काम है व्हाट? First of all, to store food for the plant. Okay, see. Now what they're saying that if you observe a chickpea, अगर आप chickpea को observe करेंगे, so chickpea की जो seed है उसको हम easily 2 parts में split कर सकते हैं. And उसका हर एक part जो है student, we call it cotyledon. Okay, जब chickpea यानी कि चना को आप soak करेंगे and soak करने के बाद जब वो बहुत soft हो जाता है तो आप उस seed को 2 parts में split कर सकते हैं. Alright, अब उस चिकपी का हर एक पार्ट जो है वो कॉटिलेडन कहलाता है. ठीक, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी सीड्स में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं दे आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स और सिंपली डाइकॉट्स. ओके, एंड देन इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मेज, मेज फॉर एग्जांपल लो, तो मेज में केवल एक सिंगल थिन कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है. एंड ऐसे प्लांट्स जिनमें केवल सिंगल कॉटिलेडन या सिंगल सीड्स प्रेजेंट होती हैं दे आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन्स और सिंपली मोनोकॉट्स. नाउ व्हाट्स रिलेशन? अब हम अगर हम रिलेशन की बात करें तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है एंड एक टैप रूट सिस्टम होता है. वेयरएज जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं उनमें पैरेलल वेनेशन है एंड फाइब्रस रूट सिस्टम इज प्रेजेंट. So these were the different types of variations in the plants, right? And we have discussed the classification of plants also till here. Then the next topic which we have is how to group animals. अब हम animals को कैसे ग्रुपिज्म में डिवाइड करते हैं? तो स्टूडेंट्स animals को भी उनके फिजिकल फीचर्स, हैबिटेट के बेसिस पे ग्रुपिज्म में डिवाइड किया जा सकता है. सच एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं दे आर नोन एज लैंड एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. फॉर एग्जांपल लायन, काउ एक्सेट्रा. ओके, तो कुछ एनिमल्स हैं जो वाटर पे सर्वाइव करते हैं एंड दे आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, क्रैब एक्सेट्रा. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव करते हैं एंड दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. एग्जांपल फ्रॉग एंड सैलमेंडर. देन कुछ एनिमल्स हैं जो एयर में फ्लाई कर सकता है लाइक बर्ड्स. बर्ड्स जो है ट्रीज पे रहती है एंड कॉमनली वी कॉल देम एप्स. एंड उसके साथ साथ इन एनिमल्स को, बर्ड्स जैसे एनिमल्स को एरियल एनिमल्स भी कहा जाता है बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर. नाउ एनिमल्स आर आल्सो ग्रुप. एनिमल्स को उनके ईटिंग या फीडिंग हैबिट्स पे ही ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. यानी कि उनकी जो फीडिंग हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स है, उस बेसिस पे भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. ओके, द एनिमल दैट सर्वाइव ओनली ऑन प्लांट्स, वो एनिमल्स जो केवल प्लांट्स पे सर्वाइव करते हैं दे आर नोन एज हर्बीवोरस एनिमल्स और सिंपली हर्बीवोर्स. एग्जांपल डियर, काउ, बफलो, गोट, शीप एक्सेट्रा. देन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं एंड दे आर नोन एज कार्निवोरस एनिमल्स और सिंपली कार्निवोर्स. एग्जांपल टाइगर, वोल्फ, जेकाल, पैंथर, बियर एक्सेट्रा. Then some animals are there जो कि plants and animals दोनों को खाते हैं. They are called as omnivores. Alright. Then कुछ animals की ऐसी कैटेगरी है जो कि सर्वाइव करते हैं by feeding on dead matter. Dead या decaying matter के ऊपर सर्वाइव करने वाले animals को scavengers कहा जाता है. And scavengers जो है हमारे environment को clean करते हैं by consuming the dead matter. Alright.
नेक्स्ट व्हाट दे हैव गिवन यू दैट डिफरेंट एनिमल्स, अब डिफरेंट एनिमल्स के स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स भी होते हैं. ओके, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आल्सो. कुछ एनिमल्स हैं जो कि फ्लाई करते हैं, सम कैन रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन. एंड ये सभी एनिमल्स अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, ये एनिमल्स अपने विंग्स, लेग्स या अदर पार्ट्स का भी यूज करते हैं विच हेल्प देम टू मूव. तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया है उन एनिमल्स को, ओके, जो कि अपने टाइप ऑफ मूवमेंट एंड उस बॉडी पार्ट को जो कि अपने मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, उस बेसिस पर आप उन्हें ग्रुप्स कर सकते हैं. सो कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट आल्सो. Now let us know learn interesting fact about the pitcher plant. We can see this is the pitcher plant. और अब हम pitcher plant के बारे में कुछ interesting facts को discuss करेंगे. So first of all, as we know कि plants are known to make their own food. Plants को किस लिए जाना जाता है कि plants ऐसे organisms हैं जो अपना food खुद prepare कर सकते हैं by the process of photosynthesis. And इस process के लिए वो carbon dioxide and water का use करते हैं in the presence of sunlight. But if we talk about pitcher plant, तो pitcher plant एक insectivorous plant है, means what? It eats up insect. ये insect खाने वाला plant है. And इसीलिए इस plant को carnivorous plant भी कहा जाता है, जिसकी leaves modified होती है. Okay, यानी कि ये एक pitfall traps की तरह होती है, यानी कि इनकी leaves एक prey trapping mechanism feature के according बनाई गई है, जिसके अंदर एक deep cavity होती है and उस कैविटी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस फिल्ड होते हैं. एंड इस द ट्रैप्स ऑफ व्हाट, इस तरीके के ट्रैप्स को हम ट्रू पिचर प्लांट कंसिडर करते हैं विच आर फॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड लीव्स. ओके, एंड ये प्लांट क्या करता है? ये प्लांट जो है अट्रैक्ट करता है अपने प्रे को विद इट्स स्वीट स्मेलिंग स्टिकी नेक्टर. नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. हम बात करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो अपने डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं. ऑलराइट, जैसे कि हमने बात करी थी इन अ पार्क और अ गार्डन. एक पार्क या गार्डन में एक गार्डनर जो है वहां पे सभी प्लांट्स की केयर करता है बाय वाटरिंग देम एंड प्रूनिंग देम रेगुलरली. जू में ह्यूमन बींग्स जो है एनिमल्स की केयर करते हैं. बट हाउ डू डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक केयर ऑफ देमसेल्फ इन एवर चेंजिंग कंडीशन व्हाइल लिविंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट. तो बात करते हैं कैसे डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अपना खुद की केयर करते हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए विद द चेंजिंग कंडीशंस. ओके, तो स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है दे आर फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. ऑलराइट, एंड वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हैबिटेट में रहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं अनदर काइंड ऑफ हैबिटेट में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स के अकॉर्डिंग. जैसे कि कैक्टस प्लांट्स जो है जिसकी थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स होती है, ये राजस्थान के डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं. जबकि जो हिमालयन सिदार है यानी कि जो देवदार ट्रीज हैं वो कॉनिकल इन शेप होते हैं. उनकी फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं विच आर फाउंड इन द हिमालयाज. ओके, माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स में जो माउंटेन्स है वहां पे फ्रीक्वेंट स्नोफॉल होता है. एंड इस तरह की कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए कुछ ट्रीज के पास एबिलिटी है कि वो अपनी ऊपर फॉल होने वाली स्नो को इजिली स्लाइड ऑफ कर सके. इसीलिए ऐसे ट्रीज जैसे कि देवदार ट्रीज का अपने एग्जांपल लिया था, देवदार ट्रीज की जो शेप है वो कॉनिकल होती है एंड उनकी ब्रांचेस स्लोपिंग होती हैं सो दैट इजिली अपने ऊपर फॉल करने वाली स्नो को स्लाइड ऑफ कर सके. देयर इज वेरी लिटिल वाटर. अब बात करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट काफी हॉट एंड ड्राई एरियाज है जहाँ पे काफी कम पानी अवेलेबल होता है. एक जो हॉट डेजर्ट है टिपिकली ड्यूरिंग द डे टाइम काफी हॉट रहता है एंड नाइट टाइम पे काफी कोल्ड रहता है. एंड इसीलिए आप देखोगे कि वहां पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फिर भी इस दोनों ही तरीके की कंडीशंस को टॉलरेट करते हैं एंड वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे एंड द कोल्ड कंडीशंस एट द नाइट ऑल्सो. ओके, डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स हैं उनकी स्टेम्स काफी फ्लैशी होती हैं जो कि वाटर को स्टोर करती हैं एंड उन्हें हेल्प करती हैं टू टॉलरेट द हॉट कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. Now different types of plants and animals. सभी particular different regions में different types के plants and animals होते हैं. For example, lotus and octopus ये आपके aquatic habitat में रहते हैं यानी कि in the water they survive.
देन गोट्स, पिजन, मंकीज ये सब ग्रासलैंड में देखने को मिलते हैं या फिर प्लेन्स या प्लेट्यूज में। फिर उसके बाद बात करें द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में जो एनिमल्स हैं उनके साइज एंड शेप भी डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन अनदर। वो पर्टिकुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, दे आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एग्जाम्पल ऑफ सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दैट इज फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स। ओके, देन वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक हैबिटेट्स में कहा जाता है कि दैट दे आर लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। ओके, फॉर एग्जांपल पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, ये सभी एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जांपल्स हैं। फिर फ्रॉग, फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो कि वाटर एज वेल एज लैंड दोनों पे सर्वाइव कर सकता है एंड देयरफॉर सच काइंड ऑफ एनिमल आर नोन एज एम्फीबियन। नेक्स्ट, एनिमल्स सीम्स टू हैव बॉडीज। अब स्टूडेंट्स, एनिमल्स के पास कुछ ऐसी बॉडीज होती है जो उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होती है। ओके, जैसे कि फिशेस एंड बर्ड्स। फिश एंड बर्ड्स की जो बॉडी शेप है वो स्ट्रीमलाइन यानी कि बोट शेप्ड होती है। ओके, एंड इनके मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती। तो इस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है वो वेरी करती है फ्रॉम दैट ऑफ अनदर बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स वेरिएशन। We have asked you to observe the images of a camel। यहाँ पे एक कैमल है जो कि आपके कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख की जो कोल्ड डेजर्ट है वहां पे सर्वाइव करने वाले कैमल की पिक्चर है। एंड ये एक कैमल है जो राजस्थान के हॉट डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं। So you can easily observe the pictures and the differences between them. Alright? So the camel in the hot desert, जो hot desert में camel है उनके जो legs हैं काफी long होते हैं। Okay? And इनके जिनमें इनके legs के नीचे जो hooves है वो काफी wide hooves होते हैं जो उन्हें help करते हैं to walk easily on the sandy desert। sandy desert में easily walk कर सकें and इनके जो hooves है वो sand में अंदर sink ना करें। इस तरीके के मूवमेंट के लिए इजिली हेल्प करते हैं द टाइप ऑफ लेग्स दीज कैमल्स हैव अडैप्टेड। ऑन द अदर हैंड, वहीं अगर बात करें कोल्ड डेजर्ट के कैमल्स की, तो इनकी जो हाइट एंड लेग्स है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है देन दोज फ्रॉम द हॉट डेजर्ट। ओके, ये जो शॉर्ट लेग्स है ये इन्हें अलाउ करते हैं टू वॉक इजिली इन द माउंटेनियस रीजन्स। ऑल्सो इट कैन बी नोटेड दैट इन डेजर्ट, ये इसके साथ साथ आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि डेजर्ट्स में फूड जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है एंड इसीलिए कैमल्स जो है वो डेजर्ट, हॉट डेजर्ट्स में या किसी भी टाइप ऑफ डेजर्ट में अपना जो फूड है वो हम्प में स्टोर करते हैं कैमल्स। ओके, सो कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट में जो कैमल्स हैं उनके पास वन हम्प होता है। ओके, जो हेल्प करता है टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैर्सिटी ऑफ फूड। देखिए, जो कोल्ड रीजन के कैमल्स हैं उनके पास 2 हम्प्स होते हैं ईच एंड ये दोनों ही हम्प्स श्रिंक हो जाते हैं इन द लेट विंटर्स बिकॉज लेट विंटर्स में देयर इज नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट एंड दे हैव टू यूज फूड स्टोर्ड इन द हम्प ड्यूरिंग दैट टाइम। क्योंकि कोल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड डेजर्ट यानी कि विंटर्स में कोल्ड डेजर्ट्स में ज्यादा फूड अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए कैमल्स को अपने इन दोनों ही हम्प में जो फूड स्टोर्ड है वो उस दौरान यानी कि विंटर सीजन के दौरान यूज करना पड़ता है एंड इसीलिए धीरे धीरे वो जो उनके हम्प है ये विंटर सीजन में श्रिंक होने लगते हैं। एंड मोर ओवर, उसके साथ साथ दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। उनकी बॉडी पे लॉन्ग हेयर होते हैं हेड से नेक तक जो उन्हें हेल्प करते हैं टू बियर द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख एंड अदर सच रीजन्स। Now, have you heard of plants with beautiful bright flowers? और जैसे कि क्या हमने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जिनमें काफी ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स होते हैं? They have given an example that is what rhododendrons। ओके, ये आपके शोला फॉरेस्ट यानी कि नीलगिरीज के शोला फॉरेस्ट में ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स you can observe and they are known as rhododendrons। Okay, this is rhododendrons in Nilgiris and this is rhododendrons in Sikkim। Okay, so students, ये जो rhododendrons है ये काफी शॉर्ट हाइट के होते हैं एंड इनकी लीव्स भी काफी स्मॉल होती हैं so that ये कैन easily सर्वाइव कर सके थ्रू द हेवी winds on the mountain tops। However, इसके साथ साथ जो rhododendrons है जो माउंटेन्स में होते हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू सिक्किम, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं rhododendrons के वो थोड़े टॉल होते हैं एंड इवन प्लांट्स। सो
कुछ ऐसे प्लांट जैसे कि रोडोडेंड्रन्स जो है उनके अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं इन द डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो, ठीक। यानी कि जो नीलगिरिस के रोडोडेंड्रन्स हैं, यहाँ इन प्लांट्स की जो लीव्स है काफी स्मॉल होती है, ओके, क्योंकि यहाँ पे जब माउंटेन टॉप्स पर ठंडी हवाएं चलती हैं उसको वो इजी बियर कर सके। लेकिन सिक्किम के जो रोडोडेंड्रस प्लांट्स हैं इनकी जो हाइट है वो थोड़ी टॉल होती है। तो इस तरीके से सेम टाइप ऑफ प्लांट है लेकिन डिफरेंट हैबिटेट में है, इसलिए डिफरेंट टाइप के फीचर्स इन प्लांट्स में अडेप्टेड होते हैं, ठीक है, इस अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, सो 10 प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं टू फिट एंड टू सर्वाइव देयर। ऑलराइट, एंड ये स्पेशल फीचर्स जो एक प्लांट एंड एनिमल को हेल्प करता है टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन, दीज आर नोन एज अडैप्टेशंस। ओके, so that's all for the chapter. It's completed over here, and I hope you must have understood the different variety of plants and animals on the earth, their adaptive features according to their different body features. Okay, and their particular habitat, so that they can easily survive in their environment, natural environment. Let's meet in the next session with a new and exciting topic of science. Till then, keep going well, learn well, and thanks to everyone.